Hello everyone. Today I will start with question answers. So first question is, how had a large number of new readers among children, women and workers increased in 19th century? Explain with example. 19th century, how had a large number of new readers among children, women and workers increased in 19th centuries Europe. Explain with example. Answer is, a large number of new readers among children, women and workers increased in 19th century Europe because of following reason. First reason is, as primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. Second, a children press was set up in France in 1857. This press published new works as well as old fairy tales and folk tales. The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales gathered from peasants. Third point, women became important as readers as well as writers. Penny magazines were especially meant for women, as were manual teaching, proper behavior, housekeeping. When novels began to be written in 19th century, women were seen as important readers. Second question, mention any three strategies adopted by printers and publishers to sell their books. Listen again. Mention any three strategies adopted by printers and publishers to sell their books. Answer. To improve the sale of books, the publisher and the printers adopted the following strategies. First, popular works were sold in cheap series called shilling series. Second, they serialized popular important novels in the 19th century periodicals to hold the interest of the readers and to ensure that he buys subsequent editions. Third, the dust cover of book jacket, cheap paper, back editions, etc. were introduced. Now, last question is, how did access to books create a new culture of reading? So, a new culture of reading answer is, a new culture of reading. First, with the developments in print, more people began to buy books and they were cheaper and easily available than before. Second, before print, there was a hearing culture. People were largely integrated. They heard ballads, folk tales told, songs sung. They didn't use a book individually and silently. Third, so when books were introduced in Europe, they were profusely illustrated, consisted of ballads and folk tales, which even the illiterate people also enjoy being read out. To ballad and folk tales were read out in group. Fourth point, oral culture entered print and a new reading culture developed. Last point, if earlier there was a hearing public, now a reading slowly came into existence. Now, next section is Indian and the world of print. India and the world of print. In this section, I will explain when printing began in India and how ideas and information were written before the age of print. So,
First, manuscript before the age of print. First topic is इंडिया बहुत ही रिच थी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट जो कि ट्रेडिशनल होती थी के कारण इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जो ट्रेडिशनल होती थी, उसके कारण इंडिया बहुत रिच थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और वर्नाकुलर लैंग्वेज हर जगह के लोग अपनी बोली में जो लिखते हैं उसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स पाम लीव्स पर या हैंडमेड पेपर पर लिखी जाती थी। पेजेस को ब्यूटीफुली सजाया जाता था और उनको वुडन कवर या सभी पेज को एक तरफ से सिल कर प्रिजर्व किया जाता था। लेट 19th सेंचुरी तक प्रिंट आने के बाद भी मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू रही। मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही कॉस्टली और फ्रेजाइल थी। उन्हें केयरफुली हैंडल करना पड़ता था। उन्हें पढ़ना इजी नहीं था क्योंकि स्क्रिप्ट्स और लेटर्स डिफरेंटली लिखे जाते थे। इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स का वाइडली यूज एवरीडे लाइफ में नहीं हो पाया। इसके बाद भी प्री कॉलोनियल बंगाल मीन्स इंग्लिश लोगों के आने से पहले बंगाल में प्राइमरी स्कूल थे। मोस्टली स्टूडेंट कुड नॉट रीड टेक्स्ट क्योंकि उन्हें सिर्फ लिखना सिखाया जाता था। टीचर्स विदाउट बुक्स डिक्टेट करते थे और स्टूडेंट उन्हें लिखते थे और इस तरह वे बिना कोई टेक्स्ट पढ़े लिटरेट हो जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंट कम्स इन इंडिया। मिड 16th सेंचुरी में पुर्तगीज मिशनरी के थ्रू प्रिंट गोवा आया। फिर जीसट प्रीस्ट ने पहले गोवा की लैंग्वेज कोंकणी को सीखा। गोवा में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको कहते हैं कोंकणी। तो जो प्रीस्ट आए जीसट प्रीस्ट, उन्होंने पहले गोवा की लैंग्वेज कोंकणी को सीखा। फिर बहुत से ट्रैक्ट्स प्रिंट किए। 1674 तक करीब 50 बुक्स कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में प्रिंट हो गई। इन 1579 में तमिलनाडु में और 1713 में कोचीन में फर्स्ट मलयालम बुक कैथोलिक प्रीस्ट के द्वारा पब्लिश की गई। इन 1710 में डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी के द्वारा 32 तमिल टेक्स्ट, जिसमें मोस्टली ओल्डर वर्क के ट्रांसलेशन थे, प्रिंट किए गए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस इंडिया में बहुत दिनों तक ग्रो नहीं कर पाई। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिश होने के बाद भी लेट 17th सेंचुरी में कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस को इंपोर्ट करना शुरू किया। फ्रॉम 1780 से जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गजेट, एक वीकली मैगजीन, एडिट करनी शुरू की और उन्होंने इस पेपर के बारे में लिखा, इट इज़ अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। मीन्स ये एक कमर्शियल पेपर है, इसे सब पढ़ सकते हैं लेकिन इस पर किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है। यह एक प्राइवेट पेपर था और यह हम सब लोगों के लिए प्राउड की बात है कि इस पेपर में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस नहीं था और इसके द्वारा ही इंग्लिश प्रिंटिंग इंडिया में स्टार्ट हुई। हिकी ने अ लॉट ऑफ एडवर्टिजमेंट करना, इस पेपर के थ्रू एडवर्टिजमेंट करना शुरू किया, जिसमें अफ्रीका में जो स्लेव ट्रेड होता था, स्लेव ट्रेड ह्यूमन बीइंग की खरीदना और बेचना जो होता था, ये जो पेपर था, जो ये मैगजीन थी कॉमर्शियल पेपर, इसमें इसका भी एडवर्टिजमेंट होता था। हिक्की ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले ऑफिशियल्स के बारे में भी बातें लिखी। इससे ब्रिटिश जो कंपनी में काम करते थे वो नाराज़ हो गए। उस समय के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिकी को परेशान करना शुरू कर दिया और इस तरह एनकरेजमेंट किया गया कि अब कोई भी न्यूज़पेपर विदाउट द सेंशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल पब्लिश नहीं हो सकता।
क्योंकि बिना सैंक्शन पेपर कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज को खराब कर रहा था। 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक बहुत से न्यूज़पेपर और जर्नल्स प्रिंट होने लगे। कुछ इंडियन ने भी इंडियन न्यूज़पेपर प्रिंट करने शुरू किए, जिसमें फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर, आपको बिल्कुल इसमें डिफरेंस करना होगा कि इसका नाम भी बंगाल गजट है, लेकिन जो अगस्त हिकी ने लिखी बंगाल गजट, वो वीकली मैगजीन थी। और जो इंडिया में प्रिंट होना शुरू किया वो फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर बंगाल गजट था, जो राम मोहन रॉय के क्लोज गंगाधर भट्टाचार्य ने पब्लिश किया। For today, it's enough. All of you subscribe the channel. Bye bye.